ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਜਾਂ ਲੇਟ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦਸ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਬੰਤੇ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਈਵਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਿਕਟ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੁੱਲ ਟਿਕਟ ਹੈਗਾ 20 ਪਾਉਂਡ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਤੋਂ 17 ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅੱਧਾ ਟਿਕਟ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰਤੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਡੇ। ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਡੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਉਣਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਉਣਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਉਣਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਉਣਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੱਤ ਸੱਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੱਤ ਸੱਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਦੇਖੋ ਮੋਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਕਰਾਰਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਉਣਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਉਣਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਭੀਮ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਉਣਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਉਣਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਤੂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਰੱਤੂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੇਵਨ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਉਣਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਉਣਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਆਉਣਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਆਉਣਾ ਭੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ 2024 ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਔਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ
गंभीर खतरा है। जय भीम जय संविधान। आओ अज विचार प्रोग्राम शुरू करिए। अज मेरे साथ प्यारे दर्शकों साढ़े बहुत ही सूझवान सत्कारयोग और नॉलेज रखण वाले ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਂਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮਾ ਨਾਗ ਜੀ ਹਨ। ਭਾਂਤੇ ਤਮਾ ਨਾਗ जी नमो बुद्धा जय भीम जय भारत। जी आपको भी नमो बुद्धाय जय भीम। आप जी। सभी को मेरी ओर से आने वाले नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, शौर्य दिन की शुभकामनाएं देता हूं। और लोटस टीवी के माध्यम से, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी के माध्यम से, वट प्रा महासंबुन बुद्धि विहार यूके के माध्यम से सभी यूके तथा यूरोप के दर्शकों को फिर से एक बार नमो बुद्धाय जय भीम और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं नए साल के लिए। थैंक यू भांते जी। भांते जी सवाल पहला मैं ये पूछना चाहना, बड़ा भखदा मसला आ भारत की पार्लीमेंट दे विच 2-3 दिन होए एक पांबड़ जिहा मचिया। ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ ਆਤਮ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਾਰੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਤੇ ਜੀ कि बाबा साहब भगवान से बढ़कर हैं या भगवान से कम है या उनका कोई मुकाबला नहीं है? सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हाउस में जो बात हुई होम मिनिस्टर के माध्यम से कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये 6-7 बार ये नाम लिया गया और उसके बाद में कहा गया कि इतने बार अगर आपने भगवान का नाम लिया होता तो शायद आप स्वर्ग में पहुंच जाते। अब ये बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वर्सेस स्वर्ग की बात है। हाँ जी जी। अब स्वर्ग तो भारत की तमाम जो शोषित पीड़ित दलित पददलित जनता जो थी वो तो एक समय हम तो वो भरोसा नहीं रखते स्वर्ग और नर्क का, लेकिन अगर कहे तो एक समय वो नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। जी जी। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उनके जीवन में एक ऐसी क्रांति की लौ लेके आए जो उन्हें समान अधिकार समानता और उन्हें ये कहा कि आप जो नर्क से बदतर जिंदगी जी रहे हो तो आप कुछ पशु नहीं हो, आप कुछ जानवर नहीं हो, आप इंसान हो। तो वो सोचिए कि उन लोगों को इंसान होने का एहसास अगर सबसे पहले किसी ने दिलाया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाया। और इसीलिए भारत के तमाम जो शोषित पीड़ित दबले कुचले लोग हैं उनके लिए उन्होंने भगवान को किस एंगल से देखा या नहीं देखा ये तो हम नहीं कह सकते, मगर ये जरूर कर सकते कि उनके जीवन में वाकई में अगर स्वर्ग की किसी ने स्थापना की तो स्वर्ग यानी क्या, तो अगर हम संवैधानिक तौर पे अगर स्वर्ग की डेफिनेशन करें या इसका अर्थ निकाले, स्वर्ग उसे कहते हैं जिसे इंसान समानता के साथ में जिए यानी सम्मान के साथ में जिए। स्वर्ग उसे कहते हैं कि जिसे मानव होने के साथ सारे मानव अधिकार प्राप्त हो। स्वर्ग उसे कहते हैं जो मानवता के अंदर में छुआछूत का शिकार ना हुआ हो। स्वर्ग उसे कहते हैं कि उसे अपने इंसान होने का एहसास हो। और ये सारी चीजें अगर किसी ने दी तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दी। और आज जो गृह मंत्री ने उन्होंने जिस तरह से अपमानित किया या अपमानजनक शब्द उनके लिए यूज किए तो उनको हम 3 एंगल में देखते हैं। एक तो सबसे पहले मानवता की डिग्निटी गरिमा,
दूसरी बात हम देखते हैं कि मानवता के अधिकार, ह्यूमन राइट्स, और तीसरी बात अगर हम इसको एनालाइज करें तो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये सोचने वाली बात है कि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन वास्तविक अर्थ, ये भारत के शोषित पीड़ित समाज को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का उनका एक उद्देश्य था, एंड उनकी गरिमा को जो प्रेम्बल में दिखा है उसमें भी लिखा है कि डिग्निटी, तो ये डिग्निटी काफी महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की, यानी फंडामेंटल राइट्स की, तो राइट्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि उन्हें संविधान के जरिए भारतीय सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है, और राजनीतिक लोकतंत्र तभी संभव है जब उसके साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जुड़ा हुआ है। अब ये जो सारी आजादी है ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के माध्यम से मिली, और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, यानी उन्होंने सिखाया कि वो सिर झुकाकर नहीं बल्कि उन शोषित पीड़ित समाज को सिर उठाने का मौका दिया और सिर उठाकर जीने का सम्मान दिया। और इसलिए आज की भारत की जो अपर कास्ट सोसाइटी है वो ये नहीं चाहती कि अभी भी जो लोअर कास्ट सोसाइटी है वो सम्मान से जिए, और इसीलिए वो इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति, उनके विचारों के प्रति अपमानजनक शब्द समय समय पे उछालते रहते हैं, जो अभी आपको संसद में देखा गया। अब इसके ऊपर में मसला तो काफी हुआ जी, सारी राजनीतिक दलों ने, चाहे फिर अपोजिशन हो चाहे फिर वो अलायंस वाले दल हो, इन्होंने भी काफी रोड पे आए, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किया, है ना। लेकिन इनकी भी एक अपनी राजनीतिक भूमिका है जी। आज वास्तविक तौर पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी इमेज जो है जी, ये सिर्फ इमेज ये दीवारों पे हमको टांगते हुए मिल रही है, चाहे आज की रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उसमें यह भी कहा गया कि हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान किया। आपने तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का इतना अपमान किया कि आपने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न भी तो 38 साल बाद दिया, ये भी उसमें बात छिड़ी गई। तो ये राजनीतिक इशू को क्रिएट करने का एक मसला है, ये हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर भारत के तमाम जितने भी शोषित पीड़ित जो लोग हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के माध्यम से, संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से आज सम्मान के साथ में जीवन जी रहे हैं, सम्मान के साथ में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सम्मान के साथ में बड़े बड़े ओहदे पे है, आज उन लोगों को वो किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं है। आज वो बात जो हो रही है वो विशेष एक दर्जे के लिए बात हो रही है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बात छिड़ी है वो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए बातचीत छिड़ी नहीं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सारे राइट्स, यानी पूरे इंडिया के तमाम लोगों के लिए वो राइट्स पैदा किए हैं। आज अगर हम ये बात करें तो हमारे गृह मंत्री भी अगर आज गृह मंत्री बने तो उसके पीछे भी तो संविधान है। कभी वो भी तो तड़ीपार थे, जेल में थे, है ना। तो आज उनको भी संवैधानिक राइट्स के माध्यम से गृह मंत्रालय मिला है, तो उसे भी तो ये समझना आनी चाहिए कि हम आज जो अगर गृह मंत्री बने तो वो भी संविधान के तौर पे ही बने हुए हैं। तो इसीलिए वो नहीं चाहते, और इसके पीछे ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये करीब करीब आज अगर हम देखते हैं तो ये 700-800 सालों से जो मनोवादी व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन काम करने की कोशिश कर रही थी। और ये मनोवादी व्यवस्था जनरेशन टू जनरेशन काम करते 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 उन्होंने काफी इशू ऐसे उछाले जो एक कट्टरवाद की तरफ लेके गए, और उसके माध्यम से जब आज उनके हाथों में ये पूरी सत्ता आई तो वो नहीं चाहते कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार ये भारत के 140 घरों के दरवाजे पे नोट किए जाए
और इसीलिए वो इस तरह से इशू क्रिएट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सिर्फ आप एक एंगल से क्यों देखते हो? उन्होंने क्या नहीं किया? भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने भारत की शिक्षा के लिए काम किया, उन्होंने उस समय कई डैमों का निर्माण भी किया। तो ये सारी बातें भी तो है। तो बाबा साहब आम्बेडकर सिर्फ एक विचार नहीं है। आज बाबा साहब आम्बेडकर जीवित ना रहते हुए भी आज वो जीवित है, समाज के बीच में जीवित है, विचारों के साथ में जीवित है, संवैधानिक विचारों के साथ में जीवित है, उनके आंदोलन के साथ में जीवित है। तो इससे किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, इस तरह का वक्तव्य अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में होता है तो फिर ये आगे के लिए सोचने के लिए मजबूर करता है कि आने वाला समय एक किस तरह से हम देख सकते हैं। भंते जी, एक साइड में बाबा साहब की चलाई हुई सोच जो है आपने बयान किया, उसको आप ऐसे समराइज करते हैं कि सोशल रेवोल्यूशन एक साइड में है और दूसरी साइड में कट्टरपंथी है जी, उनमें टक्कर है जी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना चाहते जी, ये ऐसी बात है, हिंदूवाद ले आना चाहते हैं। जी। तो भारत का फ्यूचर इसमें कैसा दिखाई देता है? देखिए ऐसे कि भारत का जो फ्यूचर आज जो अगर हम देखते हैं तो ये भारत की जनता के ऊपर में निर्भर करता है। बेशक आज चंद मुट्ठी भर लोग भारत के जनता के ऊपर में अपनी हुकूमत कर रहे होंगे विचारों के माध्यम से या फिर राजनीति के माध्यम से, मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक सेंटेंस था, गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो। सोच तो अगर भारत के आज जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जितने भी शोषित पीड़ित पददलित जितने भी लोग हैं, अगर उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यानी भारत स्वतंत्रता के पहले उनको ये एहसास दिलाया था कि आप गुलाम बनते जा रहे हो, तो उन्होंने गुलामी के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा विरोध किया। आज 75 साल होते जा रहे हैं यानी आजादी के बाद में, तो उस समय की जो कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी वो उस समय फिजिकली काफी ज्यादा थी जी, मगर आज की जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी दिखती नहीं है, मगर ये उस समय से काफी ज्यादा डेंजर आज है। इसको देखने के लिए आपको एक इंटेलेक्चुअल लेवल की ही जरूरत होगी। और उस तरह से अगर हम देखते हैं तो एक वर्ड आया कि हमें बनाना है हिंदू राष्ट्र। अब ये हिंदू राष्ट्र बार बार क्यों किसी बाबा के माध्यम से, किसी पॉलिटिशियंस के माध्यम से ये बार बार ये वर्ड यूज किया जाता है, जबकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि जब हम किसी एक राष्ट्र को किसी एक धर्म के नाम से जानेंगे तो उस राष्ट्र के अंदर में लोकतंत्र नहीं रह सकता, वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। और आज जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की पॉलिसी को या फिर इश्यू को खड़ा किया जा रहा है, उसके पीछे काफी कारण है। एक तो जो मनुस्मृति का कानून था उसको लागू करना, मनुस्मृति किसी विशेष यानी अपर कास्ट के लोगों के लिए बेनिफिट थी, अदर्स लोगों के लिए वो नुकसानदायक थी, सिर्फ एक को ही उसके लाभ मिल रहे थे, बाकी सारे अलाभान्वित थे। दूसरी बात कि ये मनुस्मृति वो लागू करना चाहते थे, लेकिन 1927 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाकर उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। एक बात ये हो गई। तो वो भी उनके अंदर में एक भावना है, किसी ना किसी तरह से वो करना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक प्रयास भी किया, फिर एक समय आया ऐसी प्रयास है कि उन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा खड़ा किया, और हिंदुत्व के एजेंडे के माध्यम से आज मेरा प्रश्न है भारत के तमाम लोगों से, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो
रूलिंग में हो, सभी बात करते हैं कि आरएसएस आरएसएस आरएसएस। और उस समय जब भारत गुलाम था तब भी बात होती थी आरएसएस आरएसएस आरएसएस। तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आरएसएस ये एक संगठन जो एक अपंजीकृत संगठन, अपंजीकृत अनरजिस्टर्ड संगठन है, वो इतना हावी कैसी हो गया? इसके पीछे भूमिका क्या रूलिंग पार्टी की है, क्या अपोजिशन पार्टी की है? क्या उस समय उनको समर्थन किसने दिया और आज समर्थन कौन दे रहा है? तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्ट दोनों तरफ से उनको समर्थन प्राप्त हुआ है और इसीलिए वो सारी चीजें हो रही है। लेकिन इन समर्थनों के बीच में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर अपने विचारों के साथ में कोई समझौता नहीं करते। अगर हम ये भी बात करें, अगर हिंदुत्व की बात करें, तो वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर थे जो हिंदुत्व के लिए लॉ मिनिस्टर से रिजाइन करते हैं। आज वो तो देखा नहीं जा रहा है, बिल्कुल, है ना? तो उन्होंने क्यों रिजाइन किया था? कि वो चाहते थे कि मुझे हिंदुत्व के अंदर में, हिंदू कोड बिल के अंदर में इस तरह से चेंजिंग चाहिए कि जो उसके अंदर में समता, समानता और बंधुत्व चाहिए। बेशक वो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाए, उसके लिए भी विरोध हुआ। तो आज की जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि एक हिंदुत्व शब्द के नाम से पूरी राजनीति हो रही है। लेकिन भारत के लोगों, जब जब कोई राष्ट्र किसी देश के नाम से, किसी धर्म के नाम से जाना जाता है, तो वो किसी एक संप्रदाय के लिए फायदेमंद हो सकता है, वहां के रहने वाले तमाम लोगों के लिए नहीं हो सकता है। और इसीलिए बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, वो संविधान में सबसे बड़ी बात की है समता की। और वो समता सभी के साथ में हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, या फिर ओपन जनरल कैटेगरी अपर कास्ट के क्यों ना लोग हो, उनके साथ भी समानता हो। फिर साथ में स्वतंत्रता हो, फिर साथ में आपके मूलभूत अधिकार आपको प्राप्त हो। तो इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के राइट्स हमको दिए हैं। उसके कारण आज ये न चाहते हुए भी उनको संविधान को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। बीच में इशू आए कि संविधान को जलाया गया, अब तो बात तो आज तो ये बात हुई, अभी 2-4 दिन पहले की बात चली गई, महाराष्ट्र में सरकार चेंज हो गई तो वहां पे संविधान को किसी ने ठेस पहुंचा दी, उसको किसी ने संविधान को टुकड़े कर दिए किसी स्क्वायर में, वहां पे बड़ा धरना हुआ। बेशक आज हर एक पार्टी बाबा साहब के अपमानजनक शब्दों के लिए आंदोलन कर रही है, लेकिन इस आंदोलन में हमें यह सोचना है कि बाबा साहब के विचारों का क्या, उनने जो विचार दिए थे वो विचारों का क्या। तो वो विचार आज इंपॉर्टेंस है। जब तक वो सोच प्रत्येक, यानी अब तो ऐसे लग रहा है कि चाहे जो भी पार्टी है, उस पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब को अपना लिया है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। भारत के देश के नागरिकों के उद्धार के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी बाबा साहब के विचारों का इस्तेमाल नहीं कर रही, वो राजनीतिक पार्टी के लिए कर रही है। ये उसके पीछे का एक बहुत बड़ा हेतु हो रहा है। और इस कारण आज अगर हम देखें तो ये कट्टरवाद के नाम से बाबा साहब के विचारों को खत्म करना चाहते हैं। मगर अगर ये कट्टरवाद आता है तो ये आज के लोग जानते हैं कि कट्टरवाद स्थापित हुआ तो क्या होगा, बहुत बड़ा अराजकता भारत में फैल जाएंगी और इंसान इंसान को काटने के लिए मजबूर हो जाएगा। अभी बनते जी, ये आपने जो बोला कि भारत में अराजकता होगी, क्या आपके देखने में, आपके तजर्बे में जो कुछ हो रहा है, क्या अभी वो अराजकता नहीं है? किसी मुसलमान की कब्र के नीचे से किसी देवी देव को निकाल देते हैं, किसी मस्जिद के नीचे से कोई भगवान निकाल देते हैं, और वहाँ अयोध्या में भी तथागत भगवान बुद्ध के स्टैचू मिलते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मगर उस जगह पर भी वो बाबरी मस्जिद के मंदिर बना दिया। राइट। और ये बाबा साहब ने एक बात कही थी कि खतरा है मेरे को कि जब बहुत सी मेजॉरिटी किसी को मिल जाए तो
क्योंकि भारत में बहुत से धर्म है, जातियां हैं, और हो सकता है कभी ऐसा भी टाइम आए और धर्म और जातियां मुल्क के जो फ़ायदा है मुल्क का उसके ऊपर उसको इम्पोर्टेंस दें, तो ये डिक्टेटरशिप होएगी। ऐसी बातें उन्होंने कही थी। मगर आज जो कुछ हो रहा है कि कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं वो बुलडोजर चलाकर किसी की मस्जिद गिरा दिया, किसी का घर गिरा दिया, वहाँ पार्लियामेंट का कानून और जुडिशरी कहाँ है? एक आदमी बोलता है ये कर दो तो हो जाता है, ये कर दो वो होए जा रहा है। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन काफ़ी जायज़ है। इसके ऊपर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 में हाँ, इसके ऊपर में एक स्पीच की थी, जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, हाँ, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए उन्होंने पहला स्पीच किया था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक लास्ट स्पीच दी थी। और वो लास्ट स्पीच में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कुछ अपनी अंदर की चिंताएं, यानी उनका जो जिसे कह सकते कि फीवर इन माय माइंड, सोच जो थी उनकी, 100 साल आगे की जो सोच थी, वो 100 साल आगे की सोच उन्होंने उस समय रखी। और उन्होंने एक बात कही थी कि कभी भी अगर जब राजनीतिक पार्टी अगर कोई किसी भी विचारधारा की हो, हम ये बात नहीं करेंगे कि वो साम्यवाद विचारधारा की हो, कि वो धार्मिक विचारधारा की हो, कि या फिर वो कम्युनिज्म विचारधारा की हो, या कम्युनिस्ट विचारधारा की हो, है ना, या कॉन्स्टिट्यूशन विचारधारा की। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि जब कोई भी पार्टी किसी धर्म के नाम से विचारधारा प्रेरित करती है और वो मेजॉरिटी में आती है, जब वो मेजॉरिटी में आती है तो ये समझ लेना कि वो धीरे धीरे भारत के अंदर में डिक्टेटरशिप स्थापित करने जा रही है। और आज हम वो देख रहे हैं। लास्ट 2014 से लेके तो 2024 तक वही चीज हो रही है। और उस चीज के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये डिक्टेटरशिप है। तो बाबा आज मेजॉरिटी है, और आज उनके पास मेजॉरिटी होने के बाद देखिए, एक समय ऐसी था कि भारत के पास में अपोजिशन लीडर नहीं था। ये बहुत बड़ी बात थी। आज भी वही स्थिति है। तो ये जो सारी स्थिति है, वो सारी स्थिति जब ये सारे मेजॉरिटी में आने के कारण बन चुकी है। और इसके लिए आज भारत के तमाम लोग अभी ये सोचे कि ये जो डिक्टेटरशिप है ये अराजकता ही कारण है और बन चुका है। आप देखो, आपने सवाल किया था कि मस्जिद के नीचे मंदिर आ रहे हैं। सर, मस्जिद के नीचे मंदिर आ रहे हैं, ये तो सारे बनावटी है। अगर हम आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से अगर हम सारा भारत को सर्वे करें तो आज जो हिंदुत्ववाद की जो बात हो रही है, वो हिंदुत्ववाद को मुसलमान से खतरा कम है। लेकिन उनको बाबा साहब द्वारा जो बुद्धिज्म को पुनर्जीर्णोद्धार किया गया भारत में, वो उनको उनसे ज्यादा डर है। और ये मुस्लिम लोगों का नाम लेके भारत के बौद्धों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। आपने सांकेत नगरी की बात की, तो क्या उनके पास में राइट्स नहीं है? क्या भारत का आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, उसकी जब केस चली तो भारत के आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ये तो बुद्धिस्ट धरोहर है। वहां पे बुद्धा के स्तूप मिले हैं, वहां पे बुद्धा के अवशेष मिले हैं। तो वहां के एक महंत ने कहा था, तो इतने साल बौद्ध लोग कहां सोए थे, उनके एक महंत ने कहा था। और फिर वो जो रिजल्ट गया है, देखिए, जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक राजनीतिक पार्टी मेजॉरिटी के साथ में आती है और वहां पे यानी व्यक्तिगत पूजा होती है। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये भी कहा था कि उस स्पीच में, अगर कोई जनक पूजा होती है, वो जनक पूजा लोकतंत्र के लिए खतरा होती है। तो आज हमारे पास में जनक पूजा हो रही है। तो वो जनक पूजा जो हो रही है, तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं
कि ये जनक पूजा आने वाले समय में भारत में डिक्टेटरशिप पैदा कर सकती है। और वो भारत की जो सरकारी संगठन है, जो संस्था है, तो आज जैसे ईडी है, सीबीआई है या फिर ज्यूडिशरी है, इसको भी वो अपने अंडर करके भारत के तमाम संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आज से 75 वर्ष पूर्व कहा, जब संविधान सौंपने का समय आया था। अभी तो भी हो रहा है, अभी वही हो रहा है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सिर्फ भावनिकता के तौर पे आप ना अपनाएं। मैं भारत के तमाम लोगों को अपील करूंगा, बेशक अमित शाह के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए शब्दों का अपमानजनक इस्तेमाल किया गया है, मगर आप अपने दिलो दिमाग में डाल दो, अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के साथ में, उनके संवैधानिक विचारों के साथ में अगर आप आंदोलन पूरे भारत में करोगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको सत्ता परिवर्तन दिखेगा। मगर आप बाबा साहब को स्टैचू के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से, किसी पुल, किसी नगर को नाम देने के माध्यम से आप बाबा साहब के जय जयकार करोगे, तो जो मनुवादी विचार है वो बाबा साहब को एक दिन भावनिक तौर पर आपके दिलो दिमाग में ईश्वरवाद के समान छाप छोड़ देंगे और आपको आजीवन आपके साथ में गुलामी, जातिवाद, छुआछूत फिर से आपके साथ में चालू कर देंगे। तो बाबा साहब को वैचारिक तौर पे समझिए, बाबा साहब को अगर आप भावनिक तौर पे मत लीजिए। और यही चीज आज भारत में हमको देखी जा रही है और इसे हम जान सकते, समझ सकते हैं। थैंक यू बांते जी। इसके आगे बांते जी मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत में जेकर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भारत में एक किस्म का गृह युद्ध अभी छिड़ा हुआ है, चल रहा है। विचारों की लड़ाई और कानून और डिसऑर्डर की लड़ाई, लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई, वो भी चल रही है। और दो मेन पार्टीज़ में बहुत लड़ाई चल रही है, मगर उसमें कोई विचारों की लड़ाई नहीं है। सेंटर में बाबा साहब को कोई इधर को खींचता, कोई इधर को खींचता है। आपने बोला है, बताया है कि पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम लेकर अपनी कुर्सी वो काम कर रहे हैं। मगर इस सारी खिंचोतान में जो अपने अनुसूचित जाति के एमपी हैं, अपर हाउस में भी हैं, 84 हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका क्या रोल है? उनको कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है कि 5-6 साल की बच्ची से लेकर 70-80 साल की बुढ़िया तक उसका हरण हो रहा है, उसका बलात्कार हो रहा है। तो उसकी अपनी अंदर की ज़मीर जो है, क्या वो उसको बुलाती नहीं है कि ये कुर्सी छोड़ थोड़ा आगे आकर काम कर? देखिए, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसी समय एक स्पीच में एक शब्द यूज किए थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना खुद का अपमान सहते हुए, अपने परिवार का त्याग करते हुए जो देश सेवा की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण, और उनके समान देश सेवा कोई कर नहीं सकता और उनके समान कोई देशभक्त हो भी नहीं सकता। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में था और मुझे आशा है कि 1950 के बाद में भारत फिर से लोकतंत्र खतरे में ना पड़े। और भारत एक गणतंत्र भी था। तो भारत कब गणतंत्र था? तो बाबा साहब ने प्रियम्बल में काफी अच्छा संदेश दिया कि भारत तब लोकतंत्र था, तब गणराज्य था, जब भारत के अंदर में बुद्ध की विचारधारा चल रही थी। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छी तरह पढ़े, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध की विचारधारा की बातचीत की और उसमें यह भी कहा कि जब बुद्ध के समय गणतंत्र होता था तो सबकी सामूहिक बैठक होती थी और उसमें राजतंत्र की बात होती थी, उसमें समाजवाद की बात होती थी, उसमें मानव अधिकार की बातचीत होती थी और उसमें विरोधी पक्ष की भी बात होती थी। उसी को बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में लिखा। फिर दूसरी बात, बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में ये लिखते हैं कि मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में लोकतंत्र को फिर से खतरा ना हो जाए। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए।
उदाहरण ऐसे दिए कि जब भारत में उस समय महाराष्ट्र के मराठों ने पेशवाई की तरफ से लड़ाई लड़ी, इधर में जब पूरा भारत 1857 के लड़ाई में था तो उस समय सिख समुदाय पूरा शांत था, उसने कुछ हलचल नहीं की। राजपूतों ने, इन्होंने भी यानी बेवफाई की, गद्दार की, और उस समय भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ा। ये बाबा साहब ने एग्जाम्पल दिया था। और फिर दूसरा एग्जाम्पल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जॉन स्टुअर्ट का दिया। तो जॉन स्टुअर्ट की जो चेतावनी है वो आज के दिन में काफी महत्वपूर्ण है। तो जिसमें कहा कि अपनी स्वतंत्रता को किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में ना रखे और ना ही उसे इतनी शक्ति सौंपे कि वो संस्थाओं को नष्ट करे जी, और ना नष्ट कर सके। महान व्यक्तियों की सेवा के प्रति आदर भाव हो, ये उचित है, लेकिन आदर भाव की भी सीमाएं है। ये जॉन स्टुअर्ट का उदाहरण जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। तो आज वही चीज हो रही है कि सारे भारत के लोगों ने हिंदूवाद के नाम से अपनी सारी स्वतंत्रता एक व्यक्ति के चरणों में निछावर कर दी। समय आएगा कि ये किसी एक व्यक्ति की जनक पूजा सभी के लिए अराजकता और असम्मानजनक साबित हो सकती है। तो आज की परिस्थिति में जो आपने कहा कि ये जो 84 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो चुन के गए हुए हैं, तो ये अपने अपने सत्ता के लालची हैं, क्योंकि इन्हें अपनी सत्ता, अपनी खुर्ची बचानी, इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये भूल गए कि आज 84 यानी 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारत में चुने गए, वो आप किसी मनुस्मृति के माध्यम से तो नहीं, आप जो चुने गए वो जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिए, आपको रिजर्वेशन सीट दी, उसके माध्यम से आप उस चेयर में बैठे हो। तो आज अगर आप संविधान के माध्यम से या फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में इस तरह से टिप्पणी कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में ही होती है या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में होती है, तो आप शांत क्यों हो, आप चुप क्यों है? तो इस पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का और एक शब्द आता है, वो कहते हैं कि किसी इंसान के माध्यम से अगर आपको लड़ाई जीतना है तो उसको 3 कैटेगरी के अंदर में ट्रैप करो। एक उसे इकोनॉमिकल, दूसरा उसको कैरेक्टर, और तीसरा उसको करप्ट कर दो। तो आज इनके कहीं ना कहीं ये तीनों कैरेक्टर के अंदर में ये फंसे हुए हैं, तो इसीलिए निडरता के साथ में बोल नहीं पाते, और जो सरकारें कहेंगी उनको सुनना पड़ेगा। तो जैसी जॉन स्टुअर्ट ने कहा कि संस्थाओं को नष्ट कर सकते हैं, तो आज संस्था नष्ट हो रही है, जुडिशरी नष्ट हो रही है, ईडी के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से। ये सारी संस्थाएं एक व्यक्तिगत पर्सन के हाथों में है, और वो चाहकर भी भारत के तमाम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर ऐसी नहीं, जिस दिन ये सभी को समझ में आ जाएगा उस दिन बहुत बड़ा एक फिर से आंदोलन खड़ा होगा, और तब ये भी बच ही नहीं पाएंगे। थैंक यू बांते जी। थोड़ा अनाउंसमेंट है जी बिल्कुल। फकीर चंद चौहान प्रोग्राम की बहुत शलाघा करते हैं। प्रेम चमकीला जी, सोडी राम जस्सड़, कमलेश जस्सड़, श्याम लाल, उन्होंने दीवान महिंद्रा जी, हंसराज, सारे प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। सत्या सलन, हरमेश जस्सड़, सत्या जस्सड़ और देव सुमन पक्षो सारे प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। निर्मला भाटिया, दीश दादरा सारे प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। नरेश मडार, कविता मडार प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा। मीतो रतू, निशू रतू, प्रिया रतू, दीश दादरा, सुमित्री दादरा, प्यारे दर्शकों टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। बलदेव बिरदी, नंजो बिरदी, मनोहर गिंडा सारे प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। धर्मपाल बंगड़, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू धर्मपाल जी। तरसेम कौल, गुरदेव कौर,
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮਿੰਦੋ ਰਤੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਮਨ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਵੀਰ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੰਤੇ ਜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਤੇ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਗੀ। 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਲੰਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਨਿਤ ਕੌਲ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਸੁਮਨ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਟਾਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹਾਲੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ झगड़ा है, असमानता, ये फिर से स्थापित करने के पिछे की संभावित की संभावना है, की ਇਹਦਾ कारण है, की चाहते है हिंदू तत्व वाले कट्टरपंथी? हाँ, देखिए जी, ये असमानता का जो कारण है ये आज का नहीं है। ये असमानता के पीछे कुछ जो अपर कास्ट सोसाइटी है उनके काफ़ी उसके पीछे के बिहाइंड्स के कारण काफ़ी है। एक उन्हें आर्थिक व्यवस्था, दूसरी उनकी राजनीतिक व्यवस्था, तीसरी उनकी खुद की सोसाइटी की व्यवस्था, चौथी उनकी धार्मिक व्यवस्था। इन सारों को बचाए रखना है। हाँ। और इसके लिए उनकी सारी ये कोशिश चालू है। मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर या फिर मनुस्मृति को जो लागू करना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे ये थे कि प्राचीन जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता की वैधता को वो लागू करना चाहते हैं। इसमें अनुचित जाति को फिर से शोषित करना चाहते हैं और उनके जीवन में फिर से वही देखना चाहते हैं। मगर ये सारे विचारों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक ही वार में समाप्त कर दिया, संवैधानिक तौर पर। संविधान उन्होंने मनुस्मृति जलाई, मगर मनुस्मृति जलाने से भी उनने सबसे बड़ा ये काम किया कि मनुस्मृति, ये आगाज दिया था उन्होंने कि मनुस्मृति ये आपका धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, लेकिन ये मानवीय हितों का ग्रंथ नहीं हो सकता। तो उस समय की व्यवस्था थी और लोग उसके आदी भी हो चुके थे जी। लेकिन उनको, उनकी आदतों को, उनके सारी जानकारी को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया और तब से जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन के लिए आज ये सारी फिर से कोशिश चालू है जी। तो असमानता की जो बात है, अभी प्रश्न ये है कि शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट के अंदर में असमानता है। शेड्यूल ट्राइब के अंदर में असमानता है। ओबीसी के अंदर में असमानता है। और हिंदू के लिए असमानता है। तो हिंदू कौन? हिंदू शब्द ही असमानता के विचारधारा पर आधारित है, जिसमें जाति व्यवस्था होगी, जिसमें छुआछूत होगी। इस शब्द के पीछे असमानता है और ये असमानता कुछ सामाजिक लोगों को या फिर कुछ अपर कास्ट लोगों का आर्थिक मनोबल बढ़ाएंगी, उनकी आर्थिक व्यवस्था बढ़ाएंगी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था को आगे लेके जाएंगी और इसीलिए आज ये असमानता लादने की कोशिश करते हैं। समानता तो वो होती है, अभी रिजर्वेशन की बात आती तो मुझे बताइए, जो कैटेगरी है, जो रिजर्वेशन इतना होना चाहिए महिलाओं के लिए, उतनी महिला तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी नहीं दिखती आपको। तो फिर समानता की बात का आई। तो ये जो सारी बात है ये काफी इंपॉर्टेंस है। तो ये असमानता तो थोपी जा रही है और इसको वैचारिक तौर पे थोपा जा रहा है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बड़े प्यार से आपको ये वैचारिक व्यवस्था दी जा रही है। पंते जी दो तीन नाम जल्दी जल्दी कह के फिर मुल्ख राज बदन जी, भारत रतन बाबा साहब जी दे जींदे जी
ਰਹਿ ਮਿੰਦੋ ਰਤੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਚਾਵਲਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ कटार भी, हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, थैंक यू बांते जी। और टाइम है नहीं, कैरी ऑन फॉर यू टू। तो पांते जी टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो चला और कहते यूट्यूब पे चला जाएगा। और ये जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, ਇਹਦੇ आसार किहो जाए, भारत का फ्यूचर किहो जाए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? असमानता के पीछे 3 मुख्य कारण है, 4 मुख्य कारण। एक, बाबा साहब के विचारों को कमजोर करना जी। दूसरा, सामाजिक असमानता को बनाए रखना। चौथा, उनके बाबा साहब के जो वैचारिक अनुयायी है उनके आत्मविश्वास को कमजोर करना। और चौथा मुख्य कारण है सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के लड़ाई धीरे धीरे कमजोर करना। तो ये 4 मुद्दे हमको अगर समझ में आ जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बात ऐसी हो कि हम बाबा साहब को आज भी भावनिक तौर पे ही थोड़ा सा समय, तो मैं एक बात कह दूं कि लोगों को हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि एक यानी ट्रेडिशनली एक प्रथा थी जिसे कहा जाता है कि जोगवन कहा जाता है। यानी वो जो मनुस्मृति का एक पार्ट है, तो अगर कोई सुंदर स्त्री है ना, तो उसे छोड़ दिया जाता है। जी। उसके साथ में कोई शादी नहीं करेगा, वो भगवान की भक्त होती है और भगवान के जो पुजारी होती है उनके दासी होती है। तो उसका शारीरिक मानसिक जो भी शोषण होना, तो उसको बाद में फिर एक टोकरी दी जाती है और टोकरी में एक भगवान रखा जाता है और वो घर घर जाके पैसे मांगती है या फिर अपना पालन पोषण करती है। आज उसी तरह से सारे राजनीतिक पार्टियों ने एक काम किया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की एक टोकरी बनाई है और उससे ऊपर रख दिया है और हर पॉलिटिशियन समाज के बीच में जा रहा है और उन्हें भावनिकता के साथ में, आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू देंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम आपके नगर को, आपके एरिया को हम ये नाम दे देंगे। अब तो ये खत्म करो। अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी पूरे भारत के जितने भी है वो ये डिमांड करे कि अब हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू तो चाहिए, साथ में हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सिद्धांत के साथ हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहिए जो खास तौर पे शोषित पीड़ित समाज के लिए हो और उनके फ्री में शिक्षा चाहिए ताकि और हम आगे बढ़ सके। आज इन्होंने टोटल एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, तो जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो इनकी जो आरएसएस या मनोवादी की जो पॉलिसी है ये 15 साल पहले चालू हो गई। 10 साल में ये घोषित करेंगे कि आफ्टर 10 ईयर आरएसएस डिक्लेयर वी आर इकोनॉमिकली शुद्रा अगेन। तो इकोनॉमिकली शुद्र अगर हम जाते हैं, तो अगर हम आर्थिक शुद्र बन जाते हैं तो हम शिक्षा नहीं ले पाएंगे, हम सर उठा के जी नहीं पाएंगे, हम अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है और इसलिए ये सारी व्यवस्था बनाई जा रही है। और इस व्यवस्था को जानना है तो सबसे पहले हमें बाबा साहब के विचारों को ही समझना पड़ेगा। भावनिकता के आधार पर हमें आंदोलन नहीं लड़ना है। और जितने भी जो आम्बेडकर राजनीतिक दल है उनसे तो मेरी एज ए भिक्षु करके ये अपील रहेंगी कि कम से कम अब तो इकट्ठा आ जाओ और बाबा साहब के विचारों की विरासत को संभाल लो। अपने गले शिकवे जितने भी है वो भूल जाओ। आने वाला 2025 साल एक बाबा साहब की नई वैचारिक क्रांति के साथ में शोषित पीड़ित समाज के लिए एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तित करे कि ताकि या कि मनोवादी व्यवस्था लाख कोशिश करने के बाद भी आपके ऊपर में हावी ना हो सके, क्योंकि एकता में ही परिवर्तन है। अगर हम बंटते रहेंगे तो फिर हम परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो बटो मत, बंटने से बचो और ना ही लालच में आओ। सत्ता आपको आज 5 साल के लिए मिलेंगी, लेकिन आगे चल के वो भी सत्ता फिनिश हो जाएंगी। मगर अगर बाबा साहब की विरासत रही, उनके विचार आपके साथ में जिंदगी भर रहे, तो आप सत्ता ला सकते हो, खोकर भी ला सकते हो।
बेशक आज हमारे पास में सत्ता नहीं है, मगर हम सत्ता ला सकते, इतना हौसला, इतनी बड़ी शक्ति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें दी है। सभी को ये लगता है कि मैं वैचारिक अच्छा हूँ, बिल्कुल, लेकिन बुद्ध ये सिखाते हैं थोड़ा सा झुकना भी सीख जा, और जिस दिन तू झुकना सीख जाएगा तो उस दिन आपका सर उठेगा भी। लेकिन आज अगर तू सर उठाएगा बगैर झुके तो आपके सर को कुचला जाएगा। तो अपने आप को झुकते हुए अपना सर उठाने की कोशिश करो। बुद्ध के ऊपर में भी काफी आलोचना लगे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऊपर में भी काफी आलोचना लगाए, मगर उन्होंने विरोध इस तरह से किया एक परिवर्तन के साथ में। तो बाबा साहब का अगर ये लालचन लगा रहे हैं, लेकिन आपका विरोध इस तरह से हो कि दोबारा वो लालचन लगाने के लिए काबिल ही ना रहे, इस तरह से सत्ता परिवर्तन कहा जाता था। इस तरह से हमें परिवर्तन चाहिए, और इस परिवर्तन की आज हमें वाकई में जरूरत है। मेरी फिर से अपील है, क्योंकि अभी हम 2 दिन के बाद में शौर्य दिन मनाएंगे, काफी महत्वपूर्ण है। मेरे तरफ से भारत के तमाम लोगों को, और खास तौर पे महाराष्ट्र के लोगों को, जो 1 तारीख को भीमा कोरेगांव में जाएंगे, उस शौर्य स्तंभ को, उस विजय स्तंभ को नतमस्तक होंगे। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि जब 2018 में 200 वर्ष पूरे हुए थे उस गाथा को, तब वहां पे बहुत बड़े दंगे भड़के थे, और हमारे आज भी 50 परिवार जेल के चक्कर काट रहे, कोर्ट कचहरी काट रहे हैं। उसके बाद में अभी जस्ट हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ में खेरलांजी भी हुआ है, हमारे साथ में परभनी का कांड भी हुआ है, और हम लाखों तादाद में सड़क में आ जाते हैं, आंदोलन के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस आंदोलन से हम अपनी शक्ति प्रदर्शन तो करते हैं, मगर इस शक्ति प्रदर्शन को अब आप वैचारिक तौर पे सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़िए। सत्ता परिवर्तन के लिए अगर हम सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे दोबारा ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, और वो आज की मनोवादी व्यवस्था नहीं चाहती है कि आप सत्ता परिवर्तन के उस सिंहासन पे बैठे। और इसीलिए सारी चीजें हो रही है। कोई हमको प्यार से गले लगा रहा है, मगर उसके प्यार के अंदर भी हमारे लिए छल कपट होता है। कोई हमें डरा के गले लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके डराने भी हमारा ही नुकसान है। मगर हम निडरता के साथ में जिए, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिए, निडरता के साथ में जिए। उन्होंने परिवर्तन करके दिखाया। महात्मा फुले, इन्होंने परिवर्तन करके दिखाया। पेरियार, इन्होंने परिवर्तन करके दिखाया। इन सारे रिफॉर्मर का हमारे पास में आदर्श है। तो उस आदर्श को हम सिर्फ किताबों में मत देखो, किताबों में मत देखो। और किताबों में अगर ढूंढते रहोगे तो किताबों में आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा। अंदर से वो चिंगारी को जगाओ। आंदोलन अंदर से जगता है, चिंगारी आपके विचारों से जगती है। तो विचारों में चिंगारी जगाइए और एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश करें। तो मैं आपको यही कहूँगा कि नए साल के लिए हम सब अपने सारे गिले शिकवे भूलकर, कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, अपना समझकर गले लगा लो, मानवता के साथ में गले लगा लो, और फिर देखो एक नया परिवर्तन, एक नया उजाला, एक नया सवेरा आपके चरणों में जरूर आएगा। और उस उजाले की ओर हमको बढ़ना है, उस सवेरे की ओर बढ़ना है। और 2025 निश्चित तौर पे अगर हम बाबा साहब के विचारों से सहमत है, भावनिक तौर पे नहीं, वैचारिक दृष्टिकोण से, परिवर्तन दृष्टिकोण से सहमत है, तो हमें 2025 के बाद में एक नया सवेरा निश्चित तौर पे दिखेगा। सचदेव बिरदी बहुत प्रोग्राम ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਤੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬੋਲੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ और बाबा साहब दी भी मनो, और ओदी बाबा साहब दी भी मनो। और जेकर प्यारे दर्शकों सारे ही धार्मिक अदारियां दे जेड़े ग्रंथी आ, पुजारी आ, पूजा पाठ करन वाले आ,
ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਤੇ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਤੇ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਪੜੀ ਜਾਣਾ, ਧੂਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਤੇ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੋ ਔਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਂਤੇ ਜੀ अंत ਵਿੱਚ की मैसेज थोड़ा देता तो है एक दफे? अंत में मैं इतना ही मैसेज दूंगा अंत में कि 2024 समाप्त हो रहा है। बात सिर्फ भारत की नहीं है, तो बात है ये मनुष्य के मन मस्तिष्क की। जी। बिखराव क्यों होता है, इसका कारण क्या है? हमारी एक सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अगर हमारी ये सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में भी आपकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, हमारे पास में सामने बैठे टेक्नीशियन उनकी भी सोच अलग होगी जी, और हर एक को लगता है कि मेरे सोच के हिसाब से काम होना चाहिए। बिल्कुल, सबके पास में एक उच्च कोटि की एंड हाईली इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, मगर वो थिंकिंग इंडिविजुअली है। बाबा साहब के एक लास्ट सेंटेंस, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि जिन जिन के पास में हाई लेवल की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, वो भाई पहले एक टेबल पे तो आए, उस टेबल पे आके उसका एक ड्राफ्ट बने, और वो ड्राफ्ट बना के फिर हम साथ में चले, तो फिर उस सोच को कोई बदल नहीं पाएगा। लेकिन अगर बिशन दास अकेला उस सोच को लेके चलता है, तो फिर निश्चित तौर पे बिशन दास को आगे खतरा हो सकता है। सभी अपनी जेब कले कले जेब में लिए, तो अकेला ना भागे। दौड़ना है तो सबको साथ में लेके चले। बाबा साहब ने परिवर्तन खुद के लिए नहीं लाया, तो पूरा सामाजिक परिवर्तन लाया। इसलिए आज बाबा साहब ना होकर भी विचारों के माध्यम से भारत के 140 करोड़ लोगों के मसीहा बने हुए हैं, उनके हर सांस में बसते हैं। तो 2024 समाप्त हो रहा है। आपके विचार, मेरे विचार, और यही कहा गया बुद्ध ने कि विचारों की संगति हो, साथ में बैठे। बेशक मैं कितना भी अच्छा वक्ता हूँ, लेकिन अगर मैं विचार आपके साथ में साझा नहीं करूँगा और आपके विचार मैं नहीं अपनाऊंगा, मेरे विचार आप नहीं अपनाएंगे, तो हम दोनों भी अलग अलग रास्ते पे जाएंगे। और जब दोनों भी अलग अलग रास्ते पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक को तो समाप्त तो होना ही पड़ेगा। और यही हो रहा है, हम साथ में मिलके चलते हैं। जो बुद्ध का नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, है ना, तो हम बहुजनों के हित के लिए चलते हैं, बहुजनों के सुख के लिए चलते हैं। चाहे वो बुद्ध धम्म के लिए हो, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, वुमेन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इन सारे मूवमेंट्स के लिए हो, मगर हम साथ में चलेंगे तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर बढ़ते हुए चलेंगे तो न जाने कब किसी को दबोच लिया जाएगा, तो भी हमको दबना नहीं है, एक साथ चलना है। और यही आपको मेरी ओर से नए साल का संदेश है कि सब गिले शिकवे भूल जाओ, माता पिता के बीच में भूल जाओ, भाई बहन के बात में भूल जाओ, पिता पुत्र के साथ में भूल जाओ, सोसाइटी के गिले शिकवे भूल जाओ, मगर आज आने वाला समय जो है 2025, एक बार शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से गले लगा लो और प्यार से 2 बातें कर लो, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और यही परिवर्तन हमको चाहिए। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। भांते जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा, और गद हो गए आपके प्रवचन सुनकर। और नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। भवतु सब्भ मंगलं, रक्षन्तु सब्भ देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा सोठी भवन्तु ते। साधु 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 साधु। थैंक यू भांते जी।